Good morning, students. I am your teacher Anil sir. As we have read in our last video about the paragraph on the dog family. This is your the page which you are seeing on your screen is your textbook page number 25. Here you can see that there is a family tree given. Now there are so many boxes, so many blanks are given, and we have to fill in the blanks with suitable words. For example, at the top of the picture you can see C, a word starting with C and ending with ES. It will be carnivorous. Okay, CARNIVORES. It will be carnivorous. And then again there is a picture from left side, the second number. It is raccoon, then hyena, then panda, then bear. Okay, at the last where the word wild has been written, under the word wild it should be wolf, then fox. Okay, so a few I have told, the rest you have to do as your homework. You have to try it your own. As you know that I have already given you the number 1 and number 2 as your homework of the related paragraph, and this is the next means pictograph. You can say pictograph means a pictorial composition which you have to do. So try your own. The number of words you can do, just try, and if 1 or 2 is left, will be left, then I will write it down. Okay, so just try with the pencil in your book. Try to do this your at your own. This is your homework. Now next page. So before starting the next the poem, let's first of all let me tell you about this pictograph clearly, that as you can see in this picture, they all are the all pictures, the all animals are actually carnivorous. मीन्स ये सभी जानवर कहीं ना कहीं मांस खाते हैं, चाहे वो सील हो, चाहे रकून हो, हाइना हो, डॉग हो, एक्सेट्रा. ये सारे के सारे जानवर जो हैं, हाँ, दे मे बी वेजिटेरियन ऑल्सो, बट दे आर बेसिकली कार्निवोरस. अब इसमें देखो क्या है कि जैसे दिया हुआ है, ये सारे के सारे स्टार्टिंग फ्रॉम सील टू बियर, they all are carnivorous. Then again there are some animals which are wild animals. Okay, so a few of the animals may be tamed. For example, a dog will be tamed, but most of the animals are very hard to be tamed. They are not tameable. उनको पालतू बनाना इतना आसान नहीं है. ज़्यादातर जानवर जो हैं वो वाइल्ड ही हैं, और दिस ऑल एनिमल्स इन योर पिक्टोग्राफ आर एक्चुअली द एनिमल्स ऑफ the animals which eat flesh. They are the carnivorous animals. Okay, so now let's start the new chapter. As you know that you can see in your textbook the page number 26. The page number 26 is the speaking portion which we will do the latter in the latter classes, in the actual offline classes. Speaking portions जो है वो हम लोग actual में offline classes में ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे. अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं. The Kite एक पोएम है आपकी, द काइट पोएम. इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको समझने की कोशिश करेंगे. सो ये आपका वीडियो आज का जो होगा वो बेसिकली इस काइट पोएम के ऊपर है. ठीक है, सो लेट्स रीड आउट द पोएम विदाउट वेस्टिंग द टाइम. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट द काइट पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हैरी बेन. आप अपनी बुक खोल के देख सकते हो, हैरी बेन द्वारा लिखी गई ये पोएम है. द वर्ड BEHN में H साइलेंट रहेगा, बेन, हैरी बेन के द्वारा लिखी गई ये पोएम है. नाउ ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स. हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? Read this poem about a kite as it flies in the sky.
स्टूडेंट्स, हम सभी बच्चे जो हैं, आप सभी बच्चे जो हैं, इवन मैं अपने बारे में भी एक्सेप्ट करता हूँ कि आई ऑल्सो लाइक टू फ्लाई द काइट्स। मुझे पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। तो ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम में से सभी काइट उड़ाना पसंद करते हैं। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? क्या आपने कोई भी काइट को मतलब अब तक उड़ाने की कोशिश की? ऑब्वियसली मैं श्योर हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर कोशिश की होगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो काइट उड़ाने की कोशिश किए होंगे, और बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो काइट उड़ाने में बहुत एक्सपर्ट भी होंगे। ठीक है, तो इस पोएम में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि काइट आसमान में जब उड़ती है तो कैसा फील होता है देखने वाले को, या काइट एक्चुअली खुद कैसे वो डील करती है हवा में, वो कैसे लहराती है, कैसे अपने आप को संभालती है, इस बारे में ये पोएम है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट when it is new, with dive and a dip it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind it back, as wind falls. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. सो स्टूडेंट्स, पहले हम लोगों ने इस पोएम को पूरा पढ़ा। अब हम लोग दो दो लाइन करके समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, वन स्टैंजा इज ऑफ टू लाइन्स। यहाँ पर हर एक स्टैंजा 2 लाइन का है, या मतलब मैंने पहले भी बोला था कि स्टोरीज में जो लिखा रहता है, जो पैराग्राफ चेंज किया रहता है, उसको हम लोग पैराग्राफ्स बोलते हैं, और पोएम में जो लाइन्स चेंज की हुई रहती है उनको हम लोग स्टैंजास बोलते हैं। तो यहाँ एक एक पोएम जो है वो 2-2 स्टैंजस की है। इसको मैंने एक एक जो स्टैंजा है वो 2-2 लाइन का है रदर। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। जब कोई नई पतंग होती है तो वो आसमान में जब उड़ती है तो बहुत ज़्यादा चमकीली और बेहद खूबसूरत लगती है। यानी एक नई पतंग आसमान में बहुत अच्छी लगती है। With a dive and a dip, it snaps its tail. वो पतंग गहराई में जाती है, गोते लगाती है और लहराते हुए अपनी पूंछ को बार बार मूव करती है। और उसका पूंछ का मूव करना मीन्स पतंग के पूंछ का मूव करना भी अपने आप में बहुत खूबसूरत दृश्य होता है। Then soars like a ship with only a sail. उसके बाद वो लहराती है हवा में। नई पतंग जब हवा में लहराती है तो ऐसा लगता है जैसे कि जहाज पानी में चल रहा हो। As over tides of wind it rides, as over tides of wind it rides. जैसे कि लहरों के बीच हवा आराम से अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही पतंग आसमान में अपना रास्ता बनाती है। Climbs to the crest of a gust and pulls. क्लाइम का मतलब ऊपर चढ़ना होता है। पतंग जो है वो काफ़ी ऊंचाई तक जाती है, बहुत ऊंचाई तक जाती है, और फुल फोर्स के साथ, पूरी फोर्स के साथ वो ऊंचाई पर जाती है। ठीक है, ऊंचाई पर जाती है और फिर हम लोग उसको अपने हाथों से खींच करके बैलेंस करते हैं, और मीन्स वो अपने आप को खींचती है और फोर्स के साथ आसमान में उड़ती है। Then seems to rest as wind falls. लेकिन अगर आसमान में हवा की मात्रा कम हो जाती है, अगर आसमान में हवा की मात्रा कम हो जाती है तो ये धीरे धीरे थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है और रेस्ट के मोड में आ जाती है। When string goes slack, you wind it back. जब आपका धागा मीन्स जब हवा कम होती है तो आपका धागा भी ढीला पड़ने लग जाता है
और फिर आप उसको वापस उतारने की कोशिश करते हो। एंड रन अनटिल ए न्यू ब्रिज ब्लोस, और वो तब तक ढीली रहती है। मान लो अचानक में पतंग आपने बहुत ऊंचाई पर उड़ा ली, और पतंग काफ़ी ऊंचाई पर उड़ाने के बाद मान लो कि जो है पतंग काफ़ी ऊंचाई पर उड़ाने के बाद मान लो कि अचानक से हवा बंद हो गई, तो पतंग काफ़ी हद तक नीचे आती रहेगी और आपको धागा लपेटना पड़ सकता है, काफ़ी करीब आ जाएगी। और लेकिन तभी अचानक अगर फिर से नया हवा का झोंका वापस आ जाए, हवा का झोंका वापस आ जाए, तो ये फिर से दौड़ पड़ती है। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और उसके पंख लग जाते हैं और वो देखो एक क्षण में, कुछ ही क्षणों में वो फटाक दे ऊपर हवा में चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, तो वही बात पहली की लाइन जो दोहराई जा रही है कि आसमान में जब काइट होती है नई, तो कितनी खूबसूरत होती है वो। बट ए रेगेडेड थिंग यू नेवर विल सी, लेकिन वो एक ऐसी खूबसूरत चीज होती है, नई जब होती है तब इतनी खूबसूरत होती है कि अगर एक पुरानी पतंग को आप उड़ाओगे तो वैसी पतंग की तुलना नहीं हो सकती। मतलब एक इतनी खूबसूरत चीज जो बार बार दिखने को नहीं मिलती, नई पतंग। When it flaps on a string in the top of a tree, फिर अगर कहीं मान लो आपकी पतंग कहीं उलझ जाए, किसी पेड़ के ऊपर अगर उलझ जाए, उसके धागे, उसका मतलब आपकी पतंग का धागा अगर किसी पेड़ के ऊपर उलझ जाए, तब भी वो हवा के झोंकों से लहराती ही रहती है और अपनी खूबसूरती बिखेरती ही रहती है। तो काइट एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसे हम लोगों को ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। काइट को इंजॉय करना बहुत अच्छी बात है, हमें जीवन में काइट को इंजॉय करना चाहिए। और हमें जो है काइट के साथ साथ, हमें काइट इंजॉय करने के साथ साथ ये देखना चाहिए कि काइट का देखभाल भी हमें करना चाहिए। यहाँ फिलहाल काइट के बारे में ये बताया गया है, पूरी पोयम ही जो है काइट की एक्टिविटीज़ के इर्द गिर्द घूमती है कि किस तरह से हवा में काइट लहराती है, किस तरह से वो जो है अपने आप को रोकती है, अगर हवा कम हो जाए तो वो ढीली पड़ जाती है, और किस तरह से दोबारा हवा चले तो वो वापस पूर्ण जोश के साथ वैसे ही आसमान में लहराती हुई जो नज़र आती है। और अगर वो कट भी जाए या उसका धागा अगर कहीं फंस जाए या वो कट जाए, तब पर भी वो अगर किसी पेड़ की चोटी पर पहुंच जाती है तो वहाँ उसका धागा अगर अटक जाए तो वो लेकिन अपने आप को लहराती रहती है और अपनी खूबसूरती बिखेरती ही रहती है। तो काइट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग मेड बाय ह्यूमन बींग्स। बहुत खूबसूरत चीज़ है काइट, जिसको इंसानों ने बनाया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई सारे देश ऐसे भी हैं जहां पर काइट फेस्टिवल्स होते हैं, इवन इंडिया में भी होता है। फॉर एग्जांपल कोलकाता में हर साल बहुत बड़ा एक काइट फेस्टिवल होता है। चाइना, जो चाइना कंट्री है, वो तो काइट फेस्टिवल के लिए पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। चाइना में तो हर साल काइट फेस्टिवल होता ही है, और वहाँ पे तो इतनी अनोखी अनोखी प्रकार की पतंगे उड़ाई जाती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ह्यूमन बीइंग के शेप की पतंग, ठीक है, किसी एनिमल के शेप की पतंग, या फिर मून के शेप की पतंग, माने बहुत गजब। माने जो नॉर्मल काइट होती है, जो स्क्वायर शेप की होती है, क्रॉस्ड स्क्वायर शेप की जो होती है, उस शेप की पतंग नहीं होकर के बहुत ही विचित्र प्रकार की, बहुत अलग अलग डिज़ाइंस की पतंग, बड़े बड़े आकार की पतंग, ये जो है चाइना में उड़ती है हर साल। तो चाइना तो इसके लिए विश्व विख्यात है काइट फेस्टिवल्स के लिए। और इवन भारत में भी आजकल हर साल अलग अलग राज्यों में काइट फेस्टिवल होता है। और वो काइट फेस्टिवल्स जो होते हैं उसमें दो तरह के लोग हिस्सा लेते हैं। एक तो वो लोग हिस्सा लेते हैं, जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में काइट फेस्टिवल में वो लोग भी हिस्सा लेते हैं जो लोग मतलब काइट को जस्ट उड़ाने का शौक़ रखते हैं। तो वो उड़ाएंगे, उस पर अगर उनकी पतंग कट जाती है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो शौक़ के लिए उड़ाते हैं। लेकिन कई बार काइट्स की प्रतियोगिता होती है, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, काइट की प्रतियोगिता होती है काइट फेस्टिवल में। काइट फेस्टिवल में आपको बोला जाता है कि आप इतनी दूरी तक उड़ाओ, बहुत दूरी तक उड़ाओ, और दूर दूर उड़ा करके दूर दूर पेंचे लड़ाओ, और कौन कितनी पतंगे काटता है,
ठीक है, इस हिसाब से कोई एक प्रतियोगिताएं भी होती हैं, फिर बाद में उसमें इनाम भी लोगों को मिलता है। तो काइट फेस्टिवल रखने का कारण स्टूडेंट्स यही है कि काइट्स हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, और काइट जो है हमें बहुत कुछ सिखाती भी है कि हमें आसमान में उड़ना चाहिए। आसमान में उड़ना चाहिए का मतलब हमें उन्नति की ओर आगे बढ़ना चाहिए, और अगर हम लोग जो है लाइफ में कभी उतार चढ़ाव भी आए तो हम लोग अपने आप को थोड़ा सा ढीला ज़रूर कर सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट मोड में हम लोग ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन फिर चीज़ें थोड़ी सी अनुकूल होती फिर वापस हमें पूर्ण जीवंतता के साथ जीवन जीना चाहिए। ये हमें काइट सिखाती है। तो नाउ स्टूडेंट्स, पोएम तो हमने पढ़ ली, अब हम लोग इसका जो एक्सरसाइज है उसको थोड़ा देखते हैं। एक्सरसाइज स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो वर्किंग विद द पोएम में लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम, जो दिया है कि पोएम में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो शो करते हैं कि एक्शन हो रहा है, यानी वर्ब कौन कौन से हैं। डाइव, डिप, स्नैप्स तो इसमें बताया गया है ही। डाइव, डिप, स्नैप्स के अलावा सोर्स है, ठीक है, क्लाइम्स है, पुल्स है, सिम्स है, फॉल्स है, ठीक है, रन है, ब्लोस है। बहुत सारे वर्ड्स आपको हर दूसरी लाइन में मिल जाएंगे। तो उन वर्ड्स को आपको देख करके यहाँ अपना फिल इन द ब्लैंक्स जो है भरना है। और उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद जैसे कि यहाँ एक और बात बोली है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, फाइंड आउट द मीनिंग और मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स। इन वर्ड्स के मीनिंग्स आपको लिखने बोलिए। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका एक होमवर्क है, फाइंड आउट द मीनिंग्स वाला आपका होमवर्क है। मीनिंग्स में आपको क्या करना है, आपको डिक्शनरी लेनी है। डिक्शनरी लेकर के आपको, जैसे पहला वर्ड है डाइव, तो डाइव वर्ड लिखना है नोटबुक में। ऑब्वियसली आपको नोटबुक में करना है, अपनी नोटबुक में आपको वर्ड मीनिंग्स लिखना है, बाकी कुछ नहीं। तो आप क्या करोगे, नोटबुक में लिखोगे डाइव, डाइव लिख करके डैश दोगे, डैश दे करके आप उसका मीनिंग लिख दोगे। उसी प्रकार से मान लो आपने ब्लोस वर्ड लिखा, तो ब्लोस वर्ड लिख करके डैश दे दोगे, फिर उसका आप मीनिंग लिख दोगे। तो इस तरह से आपको ये सारी मीनिंग्स मीन्स 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्ड्स, 8 वर्ड्स की मीनिंग्स आपको डिक्शनरी से देख करके लिखनी है। दे ऑल आर एक्शन वर्ड्स एक्चुअली, बट इनका थोड़ा बहुत मीनिंग में अंतर है। जैसे डिप का जो मतलब है, स्नैप्स का थोड़ा अलग मतलब है, ब्लोस का थोड़ा अलग मतलब है। तो वट एवर मीनिंग हैज़ बिन विल बी फाइंड बाई यू इन द डिक्शनरी, आप उसको जो कहते हो लिख सकते हो। तो ये डिक्शनरी का काम जो है आपको नोटबुक में करना है, और बाकी ये जो वर्ड्स ब्लैंक्स में आपको मिले हैं इनको आपको फिलअप करना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम, देन सोर्स लाइक ए शिप विथ ओनली ए सेल। ठीक है, ये थर्ड स्टैंजा है। देन सोर्स लाइक ए शिप विथ ओनली ए सेल। इसमें द मोमेंट ऑफ द टेललेस काइट इज कंपेयर टू ए शिप विद ए सेल। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि जो काइट की मूवमेंट है, काइट का जो मूवमेंट है उसको एक जहाज से कंपेयर किया गया है। ठीक है, इसको सिमिली कहते हैं। स्टूडेंट्स, सिमिली का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। सिमिली मीन्स कंपैरिजन, दो चीज़ों की तुलना, उसको सिमिली कहा जाता है। अच्छा, कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस में बी कंपेयर टू। क्या आप बता सकते हो कि नीचे वाले एक्शंस किसके साथ कंपेयर किए गए हैं, मतलब या नीचे वाले एक्शंस को आप किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे ही रन्स लाइक, ही ईट्स लाइक, ही सिंग्स लाइक, इट शाइन्स लाइक, इट फ्लाइज लाइक। ये जो 5 सेंटेंसेस आप देख रहे हो अधूरे, इसमें लाइक के बाद आपको एक पर्टिकुलर नेम देना है। ठीक है, एक ऐसा नाम जो कि दिए हुए एक्शन वर्ड को मैच करता हो और दिए गए एक्शन वर्ड को जस्टिफाई करता हो। जस्टिफाई इन द सेंस कि जो दौड़ने में अच्छा हो, ऐसा किसी का नाम आपको देना है। और आमतौर पर ये जो नाम होंगे, जो आप नाम दोगे, ये नाम या तो कोई थिंग होगा या फिर कोई थिंग होगा, या फिर ये नाम होगा कोई ना कोई एनिमल का नाम या बर्ड का नाम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही रन्स लाइक,
वो इसकी तरह दौड़ता है। अब ऐसे किसी जानवर का नाम दे दो आप, ऐसे किसी एनिमल का नाम दे दो जो बहुत अच्छा दौड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लेपर्ड या चीता जिसको बोलते हैं, तो ही रन्स लाइक ए लिखना पड़ेगा, ही रन्स लाइक ए लेपर्ड। ठीक। ही ईट्स लाइक, वो इसकी तरह खाना खाता है। अब कोई भी ऐसा जानवर जो बहुत खाता होगा तो लिख दो ही ईट्स लाइक एन एलिफेंट। सी सिंग्स लाइक, तो सी सिंग्स लाइक ए कुकू यानी कोयल, CUCKOO। इट शाइन्स लाइक, वो किसकी तरह चमकता है, मान लो स्टार लिख सकते हो आप, इट शाइन्स लाइक ए स्टार। इट फ्लाइज लाइक, वो किसकी तरह उड़ता है, इट फ्लाइज लाइक, सॉरी इट, हाँ इट फ्लाइज लाइक ए काइट भी कर सकते हो आप, या इट फ्लाइज लाइक एन ईगल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग बुक में करना। एंड नंबर 3 क्या है देखो, ट्राई टू मेक ए काइट विथ योर फ्रेंड्स। Collect the things required such as color paper or newspaper, thread, glue, a thin stick that can be bent. After making the kite, see if you can fly it. तो स्टूडेंट्स ये जो दिया हुआ है कि काइट को आप एक काइट बनाओ और काइट बनाने के बाद आप काइट बनाने के लिए मीन्स इट्स ए टाइप ऑफ एक्टिविटी गिवन टू यू कि आपको एक काइट बनानी है अपने दोस्तों के साथ मिलकर के। तो उसमें क्या करना है आपको, ऑब्वियसली आपको पता है पेपर लेना है, कोई अच्छा सा कलरफुल पेपर या फिर कोई न्यूज़पेपर लेना है, धागा लेना है, गम लेना है यानी ग्लू लेना है, दो कांटी लेनी है, मैंने 2 लकड़ियाँ लेनी है जिसको बीच में लगा करके आप काइट का शेप दोगे। ठीक है, एक बेंडेड लकड़ी होगी, एक लकड़ी को मुड़ा करके आप मीन्स यू आकार में आप लगाओगे और एक को स्ट्रेट लगाओगे, और उसके बाद धागा वगैरह लगा करके उसका कन्ना लगा करके आपको कोशिश करके देखनी है कि ये काइट उड़ती है कि नहीं, ये आप जो काइट बनाए हो वो उड़ने लायक है कि नहीं। तो आप समझ रहे हो बात। तो ये जो 3rd नंबर है, इट विल नॉट बी, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन बाय यू राइट नाउ। अभी करने की इसको ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल आपको 1 और 2 ही मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जो मतलब मैंने आपको लगभग सॉल्व करवा दिया है, आपको बुक में लिखना है। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो मैं यहीं तक जो है करके छोड़ रहा हूँ। तो आज मैंने क्या किया, आज हम लोगों ने क्या क्या किया, आज मैंने आपको डॉग फैमिली का जो एक पिक्टोग्राफ था, उस पिक्टोग्राफ में 2-4 वर्ड्स को सॉल्व करा करके बाकी का होमवर्क ट्राई करने दिया है। बुक में ही करना है विथ पेंसिल। और लास्ट चैप्टर का जो स्पीकिंग पोर्शन है उसे तो हमने टच भी नहीं किया, वो स्कूल खुलने के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि बच्चों से मैं वो जो एक्टिविटीज़ है वो बुलाऊंगा, बच्चों को बोलना पड़ेगा, तो ये वीडियोस के द्वारा नहीं संभव है। स्पीकिंग पोर्शंस याद रखना, बुक की जो भी स्पीकिंग पोर्शंस है दे विल बी डन आफ्टर ओपनिंग द स्कूल। और फिर हमने पढ़ा द काइट पोएम, बहुत ही मज़ेदार पोएम थी जो काइट के बारे में बताती है कि काइट किस तरह से बड़ी शान के साथ हवा में उड़ती है, और अगर हवा कम हो जाए तो वो थोड़ी सी रेस्ट में ज़रूर आती है, लेकिन फिर से थोड़ी सी भी हवा दोबारा आने के बाद वो वापस से उड़ना शुरू कर देती है। तो इस तरह से काइट भी हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है कि हमें हमेशा अलाइव, हमें सिर्फ जीवन को लीव ही नहीं कर रहा है, हमें अलाइव रहना है, यानी कि जीवन को मज़ेदार ढंग से, जीवंतता के साथ, जोश के साथ, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ जीना है। ये भी काइट कहीं ना कहीं हमें सिखाती है। और इससे रिलेटेड जो अभी ये जो पेज आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन आंसर्स मीन्स ये एक्सरसाइजेस थी। 1 और 2 मैंने वर्बली आपको बोल दी, 1 के तो मैंने जो ब्लैंक्स है वो लगभग बता दिया आपको, लेकिन इनके मीनिंग्स आपका होमवर्क है। ये जो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो पेज 28 का 1, ये सारे वर्ड्स जो हैं 1 के जितने भी 3 वर्ड दिए हुए 5 आप ब्लैंक में खुद से भरने के बाद इन 8 वर्ड्स के मीनिंग डिक्शनरी से देख करके आपको नोटबुक में करने होंगे। बाकी ब्लैंक्स तो मैंने बता ही दिया है लगभग, और 2 नंबर भी मैंने आपको बता दिया। 3rd नंबर जो है वो अभी नहीं करना है, वो स्कूल खुलने के बाद मैं आपको जब बोलूँगा तब आपको करना रहेगा। एक्टिविटी वगैरह जब मैं करवाऊँगा अगर, तो वो आफ्टर ओपनिंग ऑफ द स्कूल आपको करना है, अभी इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है, सो दिस इज़ योर क्लास अप टिल टुडे। ये जो वीडियो है ये हम यहीं तक करके छोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स होप कि जल्द से जल्द स्कूल खुले, अभी कुछ पता ही नहीं है कब खुलेगी स्कूल, वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। देखें कब खुलती है स्कूल, और स्टे एट होम, डोंट गो आउटसाइड योर होम विदाउट द वेरी अर्जेंसी।
कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम हो तभी बाहर निकलो। स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।